So, dear students, we are going to learn today a new poem uh, which is prescribed for our syllabus, and its name is Lord Ullin's Daughter. Lord Ullin's Daughter. So, this poem is a romantic love story of a daughter of Lord Ullin and her lover. So, Lord Ullin's Daughter is a ballad. It's a type of a poetry ballad. In Marathi, we can say Poval. Okay, so ballad is a type of poetry which describes the deeds, good deeds of people or great people. For example, in Marathi, we used to sing a song of ballad povadas in the worship or praises of Shivaji Maharaj. So, in this way, this story told, is narrating in the form of ballad in a poet. So, Lord Ullin's Daughter is a ballad type of poetry, tells us the tragic end of a lover and his beloved. Lover, who is the lover and who is beloved? Lover is the daughter of uh, Ullin. Then, while they were trying to elope on a dark and a stormy night, they were caught in the storm waters of the sea and were drowned. So, ये स्टोरी किसकी बारे में बता रही है हमें? एक लवर और उसका बिलेवेड. बिलेवेड मीन्स प्रियकर. सो वो अपने घर से भाग जाते हैं और उसके बाद एक समुंदर में फंस जाते हैं. उनको पकड़ने के लिए कुछ लोग, वो लवर के फादर मतलब मिस्टर यूलिन जो थे, लॉर्ड यूलिन्स के लोग, ये दो लवर का पीछा करते करते आते हैं और उनको हाईलैंड, एक स्कॉटलैंड की ये स्टोरी है, तो उसमें एक हाईलैंड एंड लोलैंड इस दो प्रकार के रीजन्स है. तो उसमें क्या होता है कि बीच में एक समुंदर है और वो समुंदर पार करने के लिए उनको वो नौका से जाना पड़ता है, बोट से जाना पड़ता है. तो उनके पीछे वो लवर जो घर से भाग के आए हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और उनको ये खाड़ी पार करके दूसरे राज्य में जाना है, इसलिए उनको ये समुंदर से जाना था. लेकिन बीच में बहुत खतरनाक सा तूफान, समुद्री तूफान वहां पे आ जाता है. इस वजह से उसमें उनको दिक्कतें आने लगती है. फिर भी वो एक बोटमैन को रिक्वेस्ट करते हैं और वो खाड़ी पार करने की कोशिश करते हैं. आखिर में क्या अंजाम होता है वो हम ये पोएट्री के बारे में देखेंगे इस लेसन में. Okay, I am going to speak in Hindi and English today. So it's a poem which you must like, because from the beginning of the world हम लोगों ने देखा है कि if there are two lovers, they are try to get married, there is some hurdle. हाँ, जब भी कोई प्यार में होके शादी करना चाहता है, भाग जाते हैं घर से, तो उसमें उनको बहुत सारी दिक्कतों की परेशानियां बहुत सारी उनके सामने आ जाती है. तो देखते हैं ये कैसी स्टोरी है आज. लॉर्ड यूलिन्स डॉटर, written by Thomas Campbell. Before that, we will come to know who is the poet. Thomas Campbell was born in 1777 and died in 1844. He born in Glasgow, Scotland, in chiefly remembered for his poem, which deals with the human affairs and are full of sentiments. He is too much the same poem. If we are trying to learn this poem, when we studied it, we come to know that it's about the emotion. It's about the emotion of father. It's about the emotion of love. And the pleasure of hope is one of the most celebrated poem written by Thomas Campbell. And
We can see the other um, uh, poetries written by the Thomas Campbell, such as The Battle of the Batty. Then Lord Julian's daughter have earned him a prominent place in the annals of English literature. Campbell was particularly about a polished perfection in narrating, which achieved with a remarkable verb of felicity. It means that कैम्बेल जो ऐसे पोएट है जो एक स्टोरी इस तरह से नरेट करते हैं कि हमारे आंखों के सामने वो खुद ब खुद जैसे कि हम मूवी देख रहे हैं ऐसा हमको लगता है। तो हम ये स्टोरी अगर हम देखेंगे तो यू हैव टू इमेजिन व्हाट हैपेंस देयर आर टू लवर्स दे आर कैचिंग बाय फॉलोड बाय द टू डेड some horsemen and what their expression on their faces, they were very frightened and excited for to start a new life also. Let's see what happened in the poem. So about the poem, in short, we can say Lord Eunice's Daughter is a love poem by Thomas Campbell. एक प्रेम के को दर्शाने वाली कविता है. इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेड. मैंने आपको बैलेड के बारे में पहले ही बताया है. A ballad is a poem that tells a story in a simple rhyming verse. What is ballad? Ballad इस तरह की एक पोएट्री होती है जो अपने आप में राइम करके एक स्टोरी नरेट करती है. The poem is a tragic story of two lovers who loses their lives for the sake of their love only because of the false ego and stubbornness of the girl's father who loses his daughter in the bargain. The father repeat in the end, but then it was too late. तो ये स्टोरी किसकी है? दो लवर्स की है जो आखिरी में उनके प्यार के लिए अपनी जान भी गवा देते हैं. ये स्टोरी है इस एक फादर की जो एक फॉल्स ईगो, ईगो मतलब आपको पता है ईगो मतलब, सो ईगो एंड स्टबर्ननेस, एक कठोरता और एक पूर्वग्रह दूषित जो रहते हैं लोग प्यार के बारे में, उस तरह के फादर की एक स्टोरी है जो आखिरी में अपनी बेटी को बचाना तो चाहता है लेकिन बचा नहीं पाता. The theme of the poem is an account of the tragic end of the two lovers choose to be together in a death than to be forced by the world into living lives separately. इस दुनिया में जो प्यार करने वाली जो जोड़ी दिखाई है पोएम में, वो दुनिया चाहती है या लोग चाहते हैं, उसके फादर चाहते हैं, उसकी मदर चाहती है कि वो दोनों अलग रहे, लेकिन उन्होंने ये मुमकिन नहीं समझा. उन्होंने अपने साथ अपने को मरने को छोड़ दिया लेकिन सेपरेट नहीं हुए. तो पोएम इज अ poignantly depict as a conflict between the rebellious nature of youth and the tyrannical authority of parents. मतलब ये पोएम इस तरह की पोएम है जो दर्शाती है कि यूथ कितना रिबेलियस है. रिबेलियस मतलब क्रांतिकारी, नई सोच वाले होते हैं, ताकि और एज कंपेयर टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स उनको ऐसा लगता है कि वो अपने दायरे में रहे ये यूथ, और ये मुमकिन नहीं होता है नौजवानों के लिए. So it is a theme. What is the message from the poem? The poem conveys the message that rash decisions can lead to the disastrous result. But for the ego, dictatorial, parental attitude, and thoughtless stubbornness, the lives of two lovers could have been saved. Lack of vision and foresight can spell tragedies. So this type of stories doesn't happen in the Maharashtra or in India. It's all over the world. If there are two lovers, everyone hates them. I don't know why people hates them. Because parents को क्या लगता है कि बच्चे हमारे हिसाब से जगने चाहिए, हमारे कहना मानना चाहिए, हमने जिसे कहा उसी के साथ उसने शादी करनी चाहिए. All this is not only happens in India, but it also happens all over the world. But nowadays, some situation has been changed. But as a parents, if you are going to be a parents after some years, you should be keep in mind that the happiness of your child is prime. आपके बच्चों की खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती ना कि अपने पेरेंट्स की, राइट. सो आगे पोएम हम देखते हैं क्या है.
हाँ, टाइटल के बारे में अगर हम देखना चाहते थे, लॉर्ड यूलियंस डॉटर इज अ पोएम रिवॉल्विंग द around the tragic love story of Lord Ullин's daughter. The story covers right from here dispatched efforts to fulfill with her lover and cross logically to her unequal struggle with the tempest and her eventual drawing in the sea. So the main character, main protagonist of the story is highlighting center idea of the story. The center character of the story is Lord Julius' daughter. See, the we try to read the poem. Okay. Now, what is the situation? Two lovers, means daughter of Lord Julian and uh, one high-ranked soldier was in a love, and the owner of that land or the king or the Lord Julian did not agree with their marriage. So he wants to chase them. उनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन अभी क्या होता है हम देखते हैं. A chieftain to the highlands bound cries. Chieftain मतलब सरदार. हाँ, हाईलैंड जो जगह है वहां का जो सरदार वो कहता है, बोटमैन डू नॉट ferry and I will give thee a silver pound to row us over the ferry. So सरदार मतलब जो लवर है वो कहता है, वो लड़की के साथ भागे हुआ वो बोटमैन जो समुद्र के किनारे बैठा हुआ है, बोटमैन उसको कहता है कि बोटमैन जहाँ जल्दी आओ, मैं तुम्हें सिल्वर पाउंड मतलब चांदी के पैसे देता हूँ और हमको सिर्फ ये नौका से ये खाड़ी पार करवा दो. नाउ हु बी ये would cross the लॉचिगल मीन्स लॉच एंगल मीन्स ये खाड़ी का नाम है स्कॉटलैंड के. वो इतनी खतरनाक खाड़ी, ये तूफान में कौन ऐसा आदमी है जो पार करना चाहता है. दिस डार्क एंड स्टॉर्मी वेदर. डार्क एंड स्टॉर्मी मतलब ये अंधेरी रात, और वो स्टॉर्मी मतलब बहुत सारा तूफान जो समुद्र में है. इस तूफान में ये खाड़ी कौन पार कर सकता है. ओ आई एम द चीफ ऑफ उल्वाज आइलैंड. आइसल मीन्स आइलैंड. एंड दिस लॉर्ड यूलियस डॉटर. वो बोटमैन को कहता है, वो लवर, कि मैं उल्वा कंट्री का और उल्वा प्रदेश का मैं चीफ हूँ, मैं सरदार हूँ, और ये मेरे लॉर्ड की डॉटर है. मतलब वो सेनापति होता होगा वो लवर, और जो राजा की लड़की है उनके साथ उनका दोनों का एक दूसरे को पसंद करने लगे और वो भागना चाहते थे. लेकिन लॉर्ड यूलियन जो उल्वा के राजा थे उनको ये मंजूर नहीं था. वो उनको पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो उनसे भागने के लिए ये समुद्र की खाड़ी पार करके दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड फास्ट बिफोर हर फादर्स मेन 3 days we were lived together, for should be find us in the glen, my blood would stain the heart. And he says he give information about their two lovers to the boatman. वो बोटमैन को कहता है कि हम 3 दिन से भागे हुए हैं घर से, वो लोगों से चुप चुप के हम भाग के यहाँ तक पहुंचे हैं, हमें ये खाड़ी पार करवा दो. और हम अगर उन लोगों को मिल गए, मीन्स किनको, फादर ऑफ दैट लेडी, अगर उन्होंने हमको पकड़ लिया तो वो हमको मार डालेंगे, वो हमारे खून के प्यासे हैं. ऐसा कौन कहता है. chieftain or chief of Ulva, means the name of lover is not given, but who was he? He was a chief of army Ulva. उल्वा प्रदेश के आर्मी का चीफ था वो, जो लॉर्ड यूलियन की डॉटर का लवर था. और लॉर्ड यूलियन के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे, उनके खून के पैसे थे, इसलिए उनको वो देश छोड़ के दूसरे देश में जाना था. यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको. ओके, समझ में आ गया बेटा. शैल वी मूव ऑन. समझ लगा. Yes, sir. Yes, sir. ओके. ओके. By this stormy grew loud aspect, the water rent was shrinking, and the skull of heaven, each face grew dark as they were speaking. By the stormy grew loud aspect, apex.
मतलब ये जो समुद्री रात है, वो जो डरावनी रात है, उसमें कौन जाने की कोशिश करेगा। एंड इन द स्कॉल ऑफ हेवन ईच फेस ग्रीव डार्क एज दे वर स्पीकिंग। ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो बोटमैन और वो दो लवर एक दूसरे को देख रहे थे। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर ये बोटमैन ने नहीं बोल दिया होता तो क्या होता। तो एक कश्मकश एक दूसरे को देख के ये तीनों कैरेक्टर कर रहे थे। अभी तक हमने देखा कि 3 कैरेक्टर्स ये पोएम में आई है। वन डॉटर ऑफ उल्वा, हिज हर लवर एंड अ बोटमैन। देन व्हाट हैपेंड, बट स्टिल वाज wilder blew the wind as the night grew drearer। हाँ, जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई तूफान और खतरनाक होते जा रहा था। डाउन द ग्लेन रोड आर्म्ड मैन द टेम्पलिंग साउंड नियर। और उसी वक्त उनको खाड़ी में से इतने जबरदस्त तूफान चालू था समुद्र में, फिर भी उनको आवाज आया कि घोड़ों पे कोई तो भी आ रहा है, टबक 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 टबक। वो कौन होंगे? वो थे उल्वा के सोल्जर्स, जो या डॉटर मिस लॉर्ड यूलिन जो थे, वो अपने लोगों के साथ आर्म मतलब शस्त्रधारी लोगों के साथ इन दोनों का पीछा करते करते वहां तक पहुंच ही रहे थे। आवाज आ रहा था उनके घोड़ों की टापों का। ओ हैस्ट दीज द लेडी क्राइज, दो टेम्पेस्ट राउंड अस टुगेदर गैदर, आई विल मीट द रेंगिंग ऑफ द स्काई। वो लड़की फिर चिल्लाई कि ओ बोटमैन हैस्ट दी मीन्स जल्दी करो हमको जाना है। ये तूफान हमको नहीं रोक सकता और मुझे अपने प्रिय जो है उसके साथ मुझे भाग जाना है और वो मुझे आकाश की ऊंचाई तक पहुंचना है। ऐसा वो लड़की कहती है। क्या कहती है वो? And by my word, the bony bird, oh hast me, jaldi karo. For a sore dismissed through storm and shade, his child he had discovered. Once a lonely hand is stretched forward and one way round her lover. Sorry. Okay. But the stormy grew loud, but still was the wilder blue. हमने देखा कि उनके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। उसमें उनके उसके फादर का भी आ, समावेश है। इसमें कुछ स्टांजास दिए नहीं है, हम अपने आप से पढ़ेंगे। Outspoke her lady hardly Highland wait. I will go, my chief, I am ready. It's not for your silver bride, but for your wisdom, a winsome lady. So बोटमैन कहता है कि डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये खाड़ी पार करवाऊंगा। और वो चीफ मैन को कहता है नॉट फॉर योर सिल्वर पाउंड। हाँ, मैं पैसों के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ, इस मासूम लड़की के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। उसके चेहरे को देख के मुझे लगता है कि शी वॉज सो इनोसेंट एंड उसको आप दोनों का आपका प्यार मिले, इसलिए मैं आपको ये समुंदर में लेके जाके इतने तूफानी रात में भी मैं आपको पार करवाऊंगा बोलते हैं। वो लोग पीछा कर रहे हैं, ये समुद्र में जा रहे हैं अभी। एंड बाय माय वर्ड द बोनी बर्ड इन डेंजर शैल नॉट टेरी, सो दाउ द वेज आर रेंगिंग वाइड, आई विल रो यूर द फेरी। इस खतरनाक तूफान में जो सुंदर सुंदर पक्षी है वो भी ये खाड़ी पार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ये खाड़ी पार करूंगा। ऐसा वो बोटमैन कहता है। जस्ट फॉर द विंसम लेडी, विंसम मतलब ये इनोसेंट लेडी के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ म्हणते। बाय द स्ट्रॉम ग्रीव लाउड एपेक्स, द वाटर विथ वॉज शेयरिंग एंड द स्कॉल ऑफ हेवन, ईच फेस ग्रीव डार्क एज वे आर स्पीकिंग। जैसे एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि अभी क्या होगा समझ में नहीं आ रहा था। समुंदर कैसे पार करेंगे, ये सभी के लिए चिंता की बात थी। But still was wider blue, the wind and the night grew dear. Andro, the glowing road-armed man, the trampling sounder near. तो अभी तो उनको फैसला लेना ही था कि हमको यहाँ से
भागना ही था। Then the boat was left stormy land. Boat was has left a stormy land, a stormy sea before her. When, oh, thou storing human had the tempest gathered over her. तो उनको अपने पीछे जो पीछा करने वाले लोगों का उनका डर लगा, उन्होंने अपनी बोट समुद्र में डाल दी जाके। वहां पे बहुत सारा खतरनाक तूफान आया था, तो समुद्र में बोट वो पार कर पाएंगे या न पार कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और वो भागने लगे। And still there they rode, admire the roar of water fast prevailing. Lord Julian reached that fatal shore. His breath was changed to wailing. और जैसे वो बीच में गए समुद्र में नौका लेके, उसी वक्त लॉर्ड यूलियन वहां पे पहुंच गया। And uh, waiting. Uh, he was seeing that what is going to happen with my daughter, where she is going. He was very frightened and he was very angry to see. He wants to kill that lover, means the chief of his army. Uh, he wants to kill that lover, but he could not do anything because they were in the sea. समुद्र के बीच में इतने खतरनाक स्ट्रॉम में भी, या स्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, तूफान में भी वो दोनों लवर साथ में थे और वो बीच में थे समुद्र के। उसको देखने के बाद लॉर्ड गिलियन घबरा गया, थोड़ा सा उसका डर खत्म हो गया और उसको अपनी बेटी की चिंता होने लगी। देखिए अभी क्या होता है। For sore dismayed through storm and shade, his child he is did discovered। इतने खतरनाक तूफान में थोड़ा सा धुंधला सा उसे दिखने लगा कि उसकी लड़की जो है वो एक वहां पे है, किसी के साथ तो भी है वो जहाज में। ओनली लोनली हैंड शी स्क्रैच्ड फॉर येड एंड वन वाज राउंड हर लवर। वो अपने पापा को हाथ दिखा रही थी। हर डॉटर वाज वेविंग टू हर फादर एंड वन, एक हाथ से वो अपने लवर को भी पकड़े हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करे। वो फादर को समझ में आ गया था कि अपनी बेटी जो है, उसकी डॉटर जो है उसे मदद मांग रही है, लेकिन वो अभी मदद करने के लायक भी नहीं था। उसके फादर का जो गुस्सा था, जो एंगर था, वो पैर में तब्दील हो गया और वो, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। कम बैक, he cried in a grief across his stormy water, and I shall forgive you, Highland sheep, my daughter, oh my daughter। और यहाँ पे अभी शुरुआत होता है डायलॉग किसका, लॉर्ड यूनियन का। ही सेज टू हिज डॉटर, कम बैक, वापस आओ बेटी, वापस आओ। और वो स्टॉर्मी वाटर को भी कहता है कि मेरे ये दोनों को भी वापस लाओ। हाईलैंड चीफ जो उसका लवर है उसको भी मैं माफ कर दूंगा, मेरे बच्चे को भी मैं माफ कर दूंगा, लेकिन उनको वापस भेजो। इट वॉज वेन द लाउड वेव्स लैश्ड द शोर, रिटर्न और एड प्रिवेंटिंग। लेकिन उसका अभी कोई मतलब नहीं था। इट वॉज वेन मतलब निरर्थक था अभी। द आवाज भी उनको वहां तक पहुंच नहीं रहा था, दूसरे एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। हाँ, द लाउड वेव्स लैश द शोर। धड़ाम से जो वेव्स थी समुद्र की वो किनारों को लग रही थी। रिटर्न ऑफ द एड प्रिवेंटिंग, द वाटर वाइल्ड वेंट ओवर हिज चाइल्ड एंड ही वाज लेफ्ट लैमेंटिंग। और जैसी समुद्र की लाट जो किनारे को लगी थी वो वापस गई, उसने उनकी जहाज को डुबा दिया। दोनों लवर जो थे, डॉटर ऑफ लॉर्ड यूलिन एंड हाईलैंड चीफ जो उसका लवर था, दोनों को डुबा दिया। वो वहां पे मर गए। और ये जो फादर था, जिसको ईगो था कि ये चीफ हमारे लड़की को भगा के लेके गया, वो सिर्फ लैमेंट कर सकता था शोर पे। अपने आंखों के सामने उसने अपनी बेटी को और उसके लवर को मरते हुए, डूबते हुए देखा, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सका। सिर्फ वहां पे शोक प्रकट करते हुए देखा जा सका था। सो इस तरह से ये एक पोयम हुई। जहां से कैसे शुरू हुई ये पोयम,
कि लॉर्ड यूलियंस की डॉटर और उसका लवर हाईलैंड जो चीफ था, आर्मी चीफ था, ही was they were eloped from their country and they were chased by her father, लॉर्ड यूलियन। जो लॉर्ड यूलियन की डॉटर थी वो उन्हीं के आर्मी चीफ के साथ भाग गई थी और उसको पकड़ने की कोशिश वहां के राजा लॉर्ड यूलिन कर रहे थे। और वो देश छोड़ने के चक्कर में ही दे वांट टू लीव द लैंड एंड दे हैव टू क्रॉस ओवर द one sea, and that sea was full of storm, and they tried to elope from that sea, but there was too much storm in the night, and they were the child and her lover were fed away, and her father was just lamenting. उसके पिता सिर्फ उसके ऊपर शोक प्रकट कर सके। इस तरह की ये पोयम है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोयम वेरी वेल। नाउ we will see the explanation of there is some explanation about the poem. A chieftain to the highland bound cries boatman do not, this is the first stanza, huh? Then second third, इस प्रकार के हम सब दिए गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोयम।